and it's my great pleasure to welcome you all on behalf of Economic Association to the last day of our workshop. I request all the participants to keep your cameras on and mic off throughout the event. You can write your doubts in the chat box or you can unmute and ask your doubts in the end of this session. No research without action, and no action without research. Research is creating knowledge. It is to see what everybody else has seen and to think what nobody else has thought. Today, in our first session, we have Dr. Sunil Chandan Sive Sir, Assistant Professor of our college. Sir has organized, presented, and participated research paper at various state, national, and international seminars, conference, and workshop. Sir has published research paper in peer review and UGC listed journal. And today, Sir will throw lights on data analysis with Microsoft Excel. It's an honor to have you here with us. Over to you, sir. Thank you, Janki, for this introduction. The today session is on the data analysis with Excel, right? So generally, what happens? We collect the data, and the thing is, we should have a skill to analyze the data because there are many softwares are there. With the help of that, uh, we can get the output immediately, like SPSS, our software. We get the data or the result immediately. But the thing is, we need to analyze. So as the economic students, we should able to analyze the data. We need to interpret the data. Therefore, the data analysis can be simply done with the help of Microsoft Excel. Yes, it is as you know that जिसके पास कंप्यूटर है उसके पास तो एक्सेल होता ही है. So how we get the data after collecting the data, like whether it is primary source of the data or secondary source of the data. So at that time, what kind of statistical tools we can use, and with the help of that, how we can interpret the data. So that we are going to understand in this lectures. So without wasting the time, I'll take you on the Excel sheet. I hope my screen is visible to all. Yes, sir. हाँ, देखो, this is the Excel sheet as you can see on the screen. अ, जैसे को हर एक का वर्जन अलग अलग हो सकता है. 2007, 2010, 13, अभी 2019 का भी आया है, या फिर द एक्सेल 365 एक अलग वर्जन है, तो दैट आल्सो यू कैन यूज. So generally, in this session, we are going to understand the uh, basic से advanced की तरफ जाएंगे हम. Okay, so at the beginning we will understand the basic statistics that generally used in the Excel. These basic statistics like average, how to calculate the average, mean, mode, median, central of major tendency, how to calculate the maximum, range, the sum, how to calculate. So all that part we'll basically discuss, uh, and after that we'll understand the थोड़ा advanced की तरफ जाएंगे. Okay, so this is the Excel sheet as you can see on the screen, and here there are certain the second column. There are different columns are there. There are unlimited columns are there, and there are unlimited. There are rows are there, so that you can use कितने भी आप use करो वो आपको कम ही पड़ेगा. मतलब there are many rows and many columns are there into the Excel sheet. And the second column talks about the name of the students. The first year serial number है, and this is the basic salary. The basic salary I have not entered here, but I will take here a random basic salary which is given to the employee by the organizations. So I'm not going to type the all the salaries. So I'm going to uh, give a one command, because there are certain the salaries given to the employees in between the range. So for that I can use a uh, formula, a random. तो यहाँ पे क्या है, इज इक्वल टू फॉर्मूला लगाया मैंने, देन यहाँ पे क्या लगा, रैंडम बिटवीन. So there is a salary is given to the employees in between what, 50,000 to 1,25,000,
right? And I'm going to close the bracket and simply pressing the enter button. Now I'm getting this the random the salary, and after that I'm going to drag. Okay, यहाँ पे क्लिक करना है, simply drag करके नीचे ले जाना है. Okay, now this is the salary is given to the employee of the organizations. This is it is in between what the 50,000 to 1,25,000, right? But यहाँ पे भी मुझे क्या करना है? Suppose I just wanted to copy this salary. I'm going to copy here, right click, copy, and I'm going to paste here somewhere. यहाँ पे मैं paste कर रहा हूँ, देखते क्या होता है. I'm going to paste here. Now what happened? देखो सैलरी में डिफरेंस है. जो पहले राजू की सैलरी कितनी यहाँ पे है 97,606 है, राइट? बट यहाँ पे कितना आया है 1,01,612, राइट? मतलब गलत आ रहा है ना कुछ तो. यहाँ पे देखो, मतलब जो हमने कॉपी जो किया था वो सेम एज इट इज यहाँ पे पेस्ट नहीं हुआ है. तो ये कोई बता सकता है व्हाई देयर इज अ डिफरेंसेस, व्हाई एज इट इज ये कॉपी क्यों नहीं हो पाया है? यस एनीवन? Sir, maybe because we have taken the range. Okay. Any other आंसर? वाई ये एक्चुअली एज इट इज कॉपी क्यों नहीं हो पाया है? बिकॉज देखो यहाँ पे आई हैव यूज्ड वन फॉर्मूला. देखो यहाँ पे फॉर्मूला क्या है? रैंडम बिटवीन 50,000 टू 1,25,000. सो फर्स्ट ऑफ ऑल अगर मुझे कॉपी पेस्ट करना है तो आई नीड टू रिमूव दिस फॉर्मूला फर्स्ट, राइट? तो उसके लिए अगर मुझे रिमूव फॉर्मूला करना है तो क्या करना होगा? आई नीड टू सेलेक्ट दिस सैलरी, राइट? एंड आफ्टर दैट आई नीड टू कॉपी, जो मैं इसको कंट्रोल सी करता हूँ. देन आफ्टर दैट आई नीड टू क्लिक ऑन पेस्ट. यहाँ पे पेस्ट करके ऑप्शन है, देखो यहाँ पे होम टैब के नीचे एक पेस्ट ऑप्शन है, तो यहाँ पे मुझे क्लिक करना है. एंड आफ्टर दैट आई नीड टू क्लिक ऑन पेस्ट स्पेशल. ओके, आफ्टर क्लिकिंग ऑन दिस पेस्ट स्पेशल, now I need to select the value, and I'm going to select the value and I'm going to click simply on OK. Now you can see when I'm going to click on this any salary, तो अभी ये फॉर्मूला चला गया. देखो फॉर्मूला दिख रहा है अभी. तो यहाँ पे क्या करना है? हियर यू नीड टू रिमूव द फॉर्मूला फर्स्ट. अभी मैं क्या करूंगा? अभी मैं इस रो को एज इट इज कॉपी करूंगा. देन आई एम गोइंग टू पेस्ट हियर. देखो एज इट इज यहाँ पे पेस्ट हो गया, राइट? What I have done here, first of all, I have used what the random in between is equal to random between. तो यहाँ पे in bracket में मैंने सैलरी दी है 50,000 to और 1,25,000, and after that मैंने उसको ड्रा किया है so that the randomly salary is given to the employee in between 50,000 to 1,25,000, right? And after अगर copy paste as it is करना है तो you need to remove the formula first. You need to remove the formula first, and after that you can the copy paste करना है, right? So I'm going to delete this column. Now this is the data which I have. There are around 20 employees are there. They are getting the salary in between this 50,000 to 1,25,000. तो मुझे यहाँ पे क्या करना है? अभी I just wanted to calculate on मतलब टोटल कितनी सैलरी दी है to all these 20 employees. तो उसके लिए क्या करना है? There is a sum is formula is there, या फिर टोटल कैलकुलेट कैसे करते हैं? Simply I just need to click here what I need to click here, यहाँ पे निकालता हूँ, ठीक है? Is equal to करना है, then sum option is there. देखो यहाँ पे is equal to sum option is there. I'm going to select here and I'm going to select यहाँ पे number 1 से नंबर जितने भी नंबर है, तो I'm going to select this part. Okay, यहाँ तक है, right? And after that I need to close the bracket. ब्रैकेट क्लोज किया मैंने. देखो यहाँ पे आपको फॉर्मूला दिखेगा. मैंने ब्रैकेट क्लोज किया. आई एम गोइंग टू प्रेस द एंटर बटन. नाउ यू कैन सी द टोटल सैलरी गिवन टू द एम्प्लॉयज कितनी है? 1,70,00,000 कितना है? 17 कितना ये? 17,84,301, right? So this is the salary given to the 20 employees, right? So in a one click you can get the total salary given to the employees, right? So this is the total. यहाँ पे कैलकुलेट करते हैं, इसको हम सम भी कहते हैं.
अभी मुझे क्या करना है, कैलकुलेट एवरेज कैलकुलेट करना है। जैसे एज यू स्टडी इन द टीवाई बीए, एवरेज क्या होता है, और एवरेज मतलब ये सिंगल नंबर प्रेजेंट करता है टू ऑल द सेट ऑफ डेटा, राइट। मतलब ऑन एन एवरेज कितनी सैलरी दी जाती है इन 20 एम्प्लॉयज को, so that can be presented by only one single number, right? So then if I wanted to calculate the average salary given to this 20 employees, तो उसके लिए क्या करना है, यहाँ पे देखो सिंपली क्या करना है, यू नीड टू यूज द फॉर्मूला इज इक्वल टू लगाना है, राइट। इज इक्वल टू इज मस्ट, ओके। देन देयर इज एवरेज लिखना है, एवरेज, यहाँ पे एवरेज आ गया देखो। देन यू टू सेलेक्ट दिस डेटा, जस्ट सेलेक्ट डेटा करना है, देन क्लिक ब्रैकेट क्लोज करना है, then simply you need to click press the enter button. Now you get the number कितना है, और an average salary given to this 20 employees कितना है, 89,215, right? Okay, so this is the average, ये single number है which is a representative of this all set of data, 20 employees के data एक number ने present किया है, right? So this is what the thing in case of if you want to calculate the average, a simple formula है, right? So in a single click you can get the average. अभी दूसरा जो आपने पढ़ा है सेंट्रल टेंडेंसी में, that is how to calculate the median. मीडियन कैलकुलेट कैसे, तो व्हाट इज मीडियन फर्स्ट, मीडियन कोई बता सकता है व्हाट इज मीडियन? यस एनीवन? The middle value of a frequency distribution. Right, it is a Midpoint. middle, yeah, it is a middle value of the set of data, right? Middle value कौन सी है, मतलब we are not there is a lower value, there are certain higher values are there, तो उसके बीच में middle value कौन सी है, so that we can present with the help of median. तो मीडियन हम कैलकुलेट कैसे करते हैं, यहाँ पे मीडियन लिखा है देखो मैंने, तो मीडियन इसकी वैल्यू निकालनी है, राइट। नाउ इसके आगे क्या करना है, इज इक्वल टू फॉर्मूला लगाना है। देखो आई एम गोइंग टू राइट द फॉर्मूला मीडियन, तो यहाँ पे आ गया देखो, इज इक्वल टू मैंने फंक्शन की यूज की है, मीडियन इज दैट, देन आई नीड टू सेलेक्ट दिस डेटा, राइट, आई नीड टू सेलेक्ट दिस डेटा, एंड आफ्टर दैट आई नीड टू ब्रैकेट क्लोज करना है, एंड आफ्टर दैट आई नीड टू सिंपली क्लिक ऑन एंटर प्रेस करना है। तो मिडिल वैल्यू कितनी है देखो, मिडिल वैल्यू मतलब it is a middle the range में मतलब 90,372 the salary is given to the employees. Okay, this is the median, it is the middle value which range in between 50,000 to 1,25,000. Okay, abhi there is a one more thing is there that we generally calculate in the central tendency is the mode. अभी mode क्या होता है, mode किसे कहते हैं, repeated value, right? It is a repeated value in the set of data or in the observation data, right? तो हमारे पास इतना डेटा है, अराउंड वी हैव द सैलरी ऑफ द 20 एम्प्लॉयज का सैलरी है। तो इफ यू वांटेड टू कैलकुलेट द मोड वैल्यू, तो यहाँ पे देखो आई एम गोइंग टू यूज द फॉर्मूला लाइक इज इक्वल टू, देन आई एम गोइंग टू टाइप हियर मोड, MOD, यहाँ पे देखो आ गया मोड, आ गया, राइट। यहाँ पे आ गया मोड, देन आई नीड टू select this data, after that I need to close bracket and I'm going to press the enter button. अभी वैल्यू क्या आई है देखो, अभी व्हाट इज द मिस्टेक हियर, यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्यों नंबर नहीं आया, कोई बता सकता है? बिकॉज कोई भी एक वैल्यू बहुत ज्यादा रिपीट, सब वैल्यूज अलग अलग है, रैंडम है, इसलिए। यस, देयर इज नो एनी, एक भी वैल्यू रिपीट नहीं है, बिकॉज वी हैव गिवन द कमांड द सैलरी इन बिटवीन दिस 50,000 to 1,25,000, राइट। तो देयर इज नो एक भी वैल्यू रिपीटेड नहीं है। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे आई एम गोइंग टू चेंज द डेटा, राइट। तो जैसे कि यहाँ पे देखो 88,113 है, देखो आई एम गोइंग टू, अभी ये 94,000 को मैं क्या करता हूँ, 88,803 करता हूँ। देखो मतलब ये दो वैल्यू डबल हो गई, एक तो ये 8 वाली नंदू को दी जाए सैलरी एंड द सेकंड रीटा को, राइट। तो आई एम गोइंग टू क्लिक हियर राइट साइड, तो यहाँ पे देखो अभी वैल्यू चेंज हो गई,
तो मोड वैल्यू हमारी चेंज हो गई, राइट? मतलब देर आर इन दिस सेट ऑफ ऑब्जर्वेशन देर आर रिपीटेड वैल्यूज देर. मोड कितना है? 88,103, राइट? सो दिस इज व्हाट द मीडियन. तो जैसे मैंने ये नंबर चेंज किया, यहाँ पे रीटा का सैलरी चेंज की, तो ऊपर का टोटल भी चेंज हो गया, एवरेज भी चेंज हो गया, मीडियन भी चेंज हो गया. देखो, and accordingly because we have set the formula, right? We have selected the set of observation, so because of that it has changed. Okay, तो जितना आप ऐड करते जाओगे, if there is a number of repeated values are there, then easily you can get the mode value. Then in the set of data, if I wanted to calculate the maximum salary, तो क्या करना, उसके लिए फॉर्मूला क्या है, यहाँ पे लिख देता हूँ मैं, इज इक्वल टू मैक्स करना है. देखो मैक्स, then you need to select this data, close bracket, सिंपल क्लिक करना है. देखो मैक्सिमम सैलरीज गिवन टू द एम्प्लॉय कितनी है? 1,21,326. दिस इज द मैक्सिमम सैलरीज गिवन. तो वैसे मिनिमम सैलरी कितनी दी जाती है आउट ऑफ दिस 20 एम्प्लॉयज? तो फॉर दैट यू कैन यूज द फॉर्मूला इज इक्वल टू MIN करना है मिनिमम. देन देयर इज व्हाट ये फंक्शन की लगानी है. देन यू नीड टू सेलेक्ट दिस डेटा, बिकॉज इसी डेटा में से हमें कैलकुलेट करना है. ओके, देन आई एम गोइंग टू क्लोज द ब्रैकेट एंड आई एम गोइंग टू प्रेस द एंटर बटन. देखो मिनिमम सैलरीज गिवन टू द एम्प्लॉय कितनी है? 53,790, राइट? तो इन दिस वे, अभी यहाँ पे ओनली 20 एम्प्लॉयज आर देयर, बट इफ देयर आर नंबर ऑफ डेटा, देयर आर नंबर ऑफ पॉपुलेशन साइज अगर सबसे ज्यादा है, 500, 1000, 1 lakh है, so at that time it is very difficult to calculate and keep in mind. So therefore on a single click you can get the minimum number of this data from this data, और the maximum number भी आप easily निकाल सकते हो. Then as I told you earlier, there are the salaries given to the employee. ये रेंज क्या बताता है? रेंज क्या इंडिकेट करता है? What is range? Yes, anyone? There is also range is calculated in the statistics, right? देखो हमें ऐसा लिमिट एंड लोएस्ट लिमिट, Maximum minus minimum. right, there is a range, right? मतलब there is a certain difference in between maximum value and minimum value. तो हम क्या करते हैं कि हम generally we give the example like inflation rate during this financial year 2020-21 में कितना रेंज में रहा है, कितना रेंज में वो फ्लक्चुएट हुआ है. तो देयर इज सर्टेन मैक्सिमम वैल्यू एंड मिनिमम वैल्यू. या फिर बैंक निफ्टी रेंज्ड टुडे इन बिटवीन दिस मैक्सिमम नंबर्स एंड मिनिमम नंबर्स, राइट? मतलब इन मैक्सिमम वैल्यू और लोअर वैल्यू, इन दोनों के बीच में वो फ्लक्चुएट हुआ है, लाइक दैट. तो वैसे हम यहाँ पे रेंज कैसे कैलकुलेट करते हैं? इट इज द डिफरेंस बिटवीन मैक्सिमम एंड मिनिमम. तो अगर वो निकालना है तो उसके लिए सिंपली इज इक्वल टू, देन लिखना है रेंज, लिखना है. सिंपली आप क्या कर सकते हो? इज इक्वल टू ये, दिस इज द मैक्सिमम वैल्यू माइनस ये मिनिमम वैल्यू इज इक्वल टू, देखो दिस इज द रेंज. मतलब देयर इज अ डिफरेंस इन बिटवीन मैक्सिमम सैलरी एंड मिनिमम सैलरी इज 67,536, right? So this is the basic statistics everyone should know, right? Basic statistics मतलब ये आपको कैलकुलेट आना ही चाहिए, because many times what happen, this kind of simple statistics are used in the data analysis. So this is very very important. अगर इस ये समझा कि आपको इसके अंदर कुछ क्वेश्चन है तो बोलो, so that immediately I can clear that. सर कैन वी फाइंड कि मिनिमम सैलरी कितने लोगों को मिली है? मिनिमम सैलरी मतलब यहाँ पे हमें फिल्टर करना होगा. मिनिमम सैलरी मतलब यहाँ पे इफ देयर इज अ सैलरी इज देयर इन बिटवीन द, हमने दिया है 50,000 to 1,25,000, राइट? तो वी नीड टू सेट द वन सैलरी, लाइक जैसे कि मिनिमम सैलरी मतलब 80,000 के नीचे कितने
एम्प्लॉयज को सैलरी मिली है, राइट? मतलब 80,000 वी हैव सेट द लिमिट, एंड दोज हु आर गेटिंग द सैलरी लेस देन दिस, दे आर दे आर गेटिंग द लोअर सैलरी, राइट? तो यहाँ पे मैं कहाँ पे तो एक सेट लिमिट लगानी होगी, and those who are getting the salary more than 80,000 comes under the higher salary, and those who are getting the salary less than 80,000, so they are getting the lower salary. ऐसा हमें क्या कोई तो एक सेट करना होगा, and after that we can say this much of employees has got the salary. If this number of the employees have got the salary more than 80,000, so ये हमें क्या करना होगा, यहाँ पे filter करना होगा. So there is a filter is another option, so that you can do here by clicking on the data set, and यहाँ पे देखो डेटा पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको यहाँ पे फिल्टर करके एक ऑप्शन आता है, और यहाँ पे आपको फिल्टर लगाना होगा. देखो जैसे कि यहाँ पे एक फिल्टर लगाया है, तो इन दिस वे यू कैन कैलकुलेट. फिल्टर लगा के आप कैलकुलेट कर सकते हो, लेस देन और ग्रेटर देन करके कर सकते हो. So that part we'll discuss little later. अभी यहाँ पे देखो, now second part we will understand, वो है अपना standard deviation and coefficient of variation. Standard deviation जनरली क्यों और किस लिए यूज किया जाता है? Yes, anyone? Standard deviation की definition क्या है? What it indicates? मीन से सारी वैल्यूज कितना बाकी सारी वैल्यूज मीन से कितना डिविएट कर रही है, डेविएट करती है, राइट? मतलब दैट जनरली दिस इज द वैल्यू विच प्रेजेंट वेदर देयर इज अ कंसिस्टेंसी in the data set or not, whether the data is consistent or not. मतलब एक एवरेज वैल्यू से डेटा कितनी दूर गया है, कितना नजदीक है. So that we can generally we can calculate with the help of standard deviation, and it is one of the most important statistical tool used by the research. Okay, तो यहाँ पे मैंने ऑलरेडी एक यहाँ पे दिया है, देखो निकाल देता हूँ. So as you can see in the on the screen, there are certain numbers are there. These are the people, या उसको हम नाम भी दे सकते हैं, name of the people, the name of the participants, and on the other there are scores. Okay, name of the students देते हैं. Number of students, there are 10 students are there, and who score in the different subject. Okay, and these are the marks are given to them. Okay, in the subject. सो यहाँ से हमें डेटा निकालना है. तो ऑलरेडी आपको पता है कि एवरेज कैसे निकालते हैं. सिंपली आपको क्या करना है, इज इक्वल टू एवरेज, एक ही लगा के आपको एवरेज कैलकुलेट कर सकते हो. ओके, सो दिस इज फाइन, बट हमें कैलकुलेट करना है कि वेदर देयर इज अ कंसिस्टेंसी इन दिस डेटा सेट और नॉट. एवरेज ये वैल्यू कितनी दूर जाती है, मतलब दैट वी जनरली अंडरस्टैंड विद द हेल्प ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन. तो यहाँ पे क्या है, दीज आर द लिमिटेड नंबर्स. मतलब हमने ये क्या है, सैंपल डेटा लिया है. मतलब ये सैंपल लिया. जैसे कि आपको पता है कि इफ यू वांट टू डू द सर्वे ऑफ इंडिया का अगर कुछ हमें निकालना है, इन्फ्लेशन रेट या फिर कुछ लेना है, तो मतलब यहाँ पे एंटायर पॉपुलेशन में कैन नॉट कवर, है ना. अगर विलेज का भी लेना तो कुछ हम सैंपल लेते हैं, सैंपल साइज लेते हैं. तो यहाँ पे मैंने कुछ सैंपल लिया है, दैट इज द 10 स्टूडेंट्स लिए. हमारे कॉलेज में कितने स्टूडेंट्स है, मोर देन 5,000 स्टूडेंट्स आर देयर. लेकिन सबका डेटा लेना पॉसिबल है क्या? नहीं. तो आई हैव टेकन हियर द ओनली सैंपल नंबर्स. ओके, तो सैंपल डेटा आई हैव टेकन, दैट इज ऑफ द 10 स्टूडेंट्स. So for that, if I want to calculate the standard deviation of this set of observation, what I need to do, I need to give the command is equal to, यहाँ पे लिखा देखो SB. क्या लिखा है, STDEV, मतलब स्टैंडर्ड डेविएशन S.S, मतलब ये सैंपल है, बिकॉज आई हैव टेकन द सैंपल. आई एम नॉट गोइंग टू कवर ऑल द एंटायर पॉपुलेशन, सो देयरफॉर आई नीड टू सेलेक्ट STDEV डॉट
S. If I'm going to get all the population, मतलब जितने मेरे sample size है, अगर I'm going to cover all the responses, then I need to click what? I need to select standard deviation dot p. Enter population I need to select. तो मैंने जैसे कि यहाँ पे sample लिया तो what I will do? Standard deviation S. Then I need to, यहाँ पे क्या करना आपको, यहाँ लिखो number 1, number 2, जिसे add करना है. तो this is the set of observation I am going to select from column, from row 5 to 14, right? And after that, I'm going to close the bracket. I need to click simply enter. Then I got the standard deviation of 5.53. So this is the standard deviation which I have calculated by using this formula. अगर आप बुक में जो आपको फॉर्मूला दिया है, वो कैलकुलेशन दिया है, वो वहाँ पे अलग अलग स्टेप्स है, अलग अलग प्रोसीजर्स है, so that you need to do that. लेकिन in Excel easily on a single click you can calculate the standard deviation. Okay, so this is the beauty of this Excel. Then second one, अगर आपको कैलकुलेट करना है coefficient of variation, generally that calculated we generally calculate in the percentage. तो उसके लिए क्या करना है, if you want to calculate the coefficient of variation, then use the formula is equal to, then ये वैल्यू सेलेक्ट करनी है divided by 100. Generally coefficient of variation ranges in between 0 to 1. So there is a value coefficient of variation की कितनी है, 0.05. So in this way you can calculate the coefficient of variation and standard deviation. Okay, standard deviation generally it shows the variance is there in the variance is there as compared to average or not. Okay, so in this way you can calculate the standard deviation and coefficient of variation. Then next part that we are going to understand how to calculate the percentage. The percentage is generally used in the data set. ये percentage तो हमें निकालना ही होता है. If you are going to collect any primary data or secondary source of the data, तो यहाँ पे मैंने कुछ ऐसा डमी यहाँ पे डेटा लिया है, तो उसके बेसिस हम देखते हैं कि डेटा क्या है. देखो यहाँ पे डेटा सेट टेबल दिया है. These are the different dates are there from 17 May to 22 May, and this is the number of COVID cases in Maharashtra are given daily. ये May 20 to 22 May 20 की है. And this is the total, यहाँ पे ये एवरेज निकाला है. ठीक है, इसको ये हमने डिस्कस के लिए इसको निकाल देते. ठीक है, इसको हमने ऑलरेडी डिस्कस किया. ठीक है, तो विल नॉट डिस्कस दैट. देन यहाँ पे क्या करना है कि these are the daily cases in Maharashtra and these are the COVID-19 cases in India. So this is the total number. So yeah, out of total, what is the percentage of COVID patient in Maharashtra? अगर ये percentage share calculate करना है, because out of this 19,927, there are 30,706 cases are in Maharashtra only. तो कितने percentage कोरोना cases महाराष्ट्र में है? तो if you wanted to calculate this, तो यहाँ पे हमने फॉर्मूला दिया है. देखो फॉर्मूला कैसा दिया है. यहाँ पे फॉर्मूला क्या करना है आपको, यहाँ पे लिखा है. देखो इज इक्वल टू फॉर्मूला देना है. देन B5 मतलब द कोरोना केसेस इन महाराष्ट्र डिवाइडेड बाय कोरोना केसेस इन इंडिया ब्रैकेट क्लोज इनटू 100 करना है. ओके, सो व्हाट आई एम गोइंग टू डू हियर, आई एम गोइंग टू, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ. देखो देखो देर इज पहली रो का निकालना है हमें. क्या करना है, इज इक्वल टू इन ब्रैकेट, राइट, देन कोरोना केसेस इन महाराष्ट्र, क्या देन नेक्स्ट था, डिवाइडेड बाय कोरोना केसेस इन इंडिया ब्रैकेट क्लोज इनटू क्या था, गलत हो गया फॉर्मूला, राइट. तो दिस इज द फॉर्मूला. Right, मतलब there are 33.77% cases are only in Maharashtra. तो जैसे कि आपने ये कैलकुलेट कर लिया. ओके, जैसे कि आपने ये कैलकुलेट कर लिया, मतलब यहाँ पे फॉर्मूला लगाया है ऑलरेडी मैंने.
क्या फॉर्मूला है? द इज इक्वल टू, यहाँ पे देखो, आई होप माई स्क्रीन विजिबल टू ऑल। Yes, Yes, sir. sir. तो यहाँ पे फॉर्मूला लिखा है, देखो, देयर इज अ फॉर्मूला इज इक्वल टू इन ब्रैकेट बी फोर मतलब ये वैल्यू अपनी कौन सी, ये कोरोना केसेस इन महाराष्ट्र, बी फोर्थ रो, राइट, बी4 डिवाइडेड बाय जी फोर मतलब ये अपने टोटल number of cases, COVID cases in India, that is 19,927. ब्रैकेट क्लोज करना है into 100. So this is the formula that you need to use. तो ये फॉर्मूला क्लिक करने के बाद आपको सिंपली क्या करना है, एंटर प्रेस करना है, एंड आफ्टर दैट यू विल गेट द परसेंटेज शेयर ऑफ द कोविड केसेस इन महाराष्ट्र। ठीक है, अभी आफ्टर दैट क्या करना है आपको, यहाँ पे क्लिक करने के बाद, यहाँ पे क्लिक करना है आपको, एंड आफ्टर दैट यू नीड टू सिंपली ड्रैग करना है, तो आपको सभी का इमीडिएटली इन 1 सेकेंड डेटा मिल जाएगा। तो देखो, मतलब 22 मई को कितने केसेस है, 35.16% केसेस इन महाराष्ट्र ओनली। 19 मई को कितने केसेस है, 34.66 केसेस इन महाराष्ट्र आउट ऑफ दिस टोटल corona cases in India, right? So in this way you can calculate the percentage share. Okay, so this is a very very important thing that we need to understand, and generally we use when we are going to analyze the data. ठीक है, देन यहाँ पे लिखा है, क्या लिखा है, जरा सिंपल ग्रोथ रेट ऑफ द कोरोना केसेस इन महाराष्ट्र एंड इन इंडिया। तो मुझे ऑलरेडी मैंने यहाँ पे सिंपल ग्रोथ रेट निकाला है। तो यहाँ पे क्या किया है मैंने, यहाँ पे एज यू कैन सी ऑन द स्क्रीन, क्योंकि यहाँ पे क्या लिखा है, दिस इज द व्हाट, दिस इज फॉर दिस, ओके। 7.64 कैसे आया है, देखो, B5 मतलब यहाँ पे क्या लिखा है, दिस वैल्यू, ओके, ये B5 मतलब करंट कोरोना केसेस, बिकॉज वी जस्ट वांटेड टू ग्रोथ ऑन 18 मई 2020। तो करंट कोरोना केसेस माइनस प्रीवियस कोरोना केसेस मतलब प्रीवियस डे कोरोना केसेस, ब्रैकेट क्लोज, डिवाइडेड बाय प्रीवियस कोरोना केसेस, राइट। तो अगर इसी को हमें कैलकुलेट करना है ऑफ इसका इंडिया का कैलकुलेट करना है, ओके। तो व्हाट आई विल डू, इफ आई वांट टू कैलकुलेट द सिंपल ग्रोथ रेट, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, इसी को कॉपी करता हूँ, ठीक है। हमें कैलकुलेट क्या करना है, सिंपल ग्रोथ रेट, सिंपल ग्रोथ इन बिटवीन, मतलब 17 को केसेस कितने थे और 19 को कितने, तो उसका सिंपल ग्रोथ कैलकुलेट करना है। तो क्या करना है, इज इक्वल टू करंट कोरोना केसेस, दूसरा क्या फॉर्मूला था, माइनस प्रीवियस कोरोना केसेस, एक्चुअली मैंने ब्रैकेट नहीं लिया, राइट। और इसके बाद क्या करना है हमें, डिवाइडेड बाय व्हाट, प्रीवियस कोरोना केसेस, यू विल गेट दिस वैल्यू, राइट। तो ये वैल्यू किसके अंदर है, दिस इज देन परसेंटेज में अगर कन्वर्ट करना है तो व्हाट आई नीड टू डू, आई नीड टू क्लिक सिंपली राइट क्लिक, उसके ऊपर करना है, देन आई नीड टू क्लिक ऑन फॉर्मेट सेल। फॉर्मेट सेल पे जाने के बाद आपको क्या करना है, यू नीड टू सेलेक्ट द ऑप्शन ऑफ व्हाट, परसेंटेज, राइट। तो परसेंटेज कहाँ पे है, यहाँ पे है, ओके। तो परसेंटेज कितना आया, 5.77, राइट। देन आई एम गोइंग टू सेलेक्ट द ओके। देखो मतलब कितना परसेंटेज इंक्रीज हुआ है, 5.57%। देयर इज इंक्रीज इनटू द कोरोना केसेस फ्रॉम लास्ट डे, मतलब 17 से 18 इतना ग्रोथ हुआ है, सिंपल ग्रोथ इतना हुआ है, राइट। सो इन दिस वे वी कैन कैलकुलेट। देन सेकंड ऑप्शन देखो, अगर इसी को आपको और ड्रैग करके भी कैलकुलेट कर सकते हो, तो सिंपली उसके लिए क्या करना है, यू नीड टू क्लिक ऑन दिस सेल एंड आफ्टर दैट यू नीड टू ड्रैग, सिंपल। देखो ये पूरा आपका
ग्रोथ रेट आपने कैलकुलेट कर दिया ऑफ ऑल द डेज, राइट। सेकेंड मतलब इन बिटवीन 18 टू 19 में कितना ग्रोथ हुआ है, अगेन 5.17। सबसे ज्यादा कहाँ पे हुआ है, यहाँ पे, राइट। मतलब इन बिटवीन 19 टू 20, so there is a more growth of corona cases during this 2 days, like 19 to 20, 5.55% there is a simple growth। तो ये हम सिंपल ग्रोथ रेट भी कैलकुलेट कर सकते हैं सिंपली ना इन एक्सेल शीट। यस, एनी क्वेश्चन इन दिस परसेंटेज शेयर या फिर परसेंटेज में? समझा आपको? Yes, sir. Yes, sir. ठीक, then next part that we are going to understand that is descriptive statistics, right? Descriptive statistics is very very important because sometimes what happen, मैंने यहाँ पे क्या किया, बेसिक स्टैटिस्टिक्स में मैंने क्या कैलकुलेट किया, मैंने ये सैलरी रैंडमली ले ली और बाद में वन बाय वन मुझे जैसा मुझे स्टैटिस्टिकल टूल चाहिए तो वैसे मैंने क्या किया, वहाँ पे फंक्शन की लगाई एंड आई जस्ट कैलकुलेट द सम, एवरेज, मीन, मोड, मीडियन, standard deviation, like that I have calculated this, right? But if you wanted to calculate this descriptive statistics, मतलब ये पूरा कैलकुलेट करना है आपको, मीन, स्टैंडर्ड एरर, मीडियन, मोड, स्टैंडर्ड डिवीजन, कुर्टोसिस, स्क्यूनेस, रेंज, मिनिमम मैक्सिमम वैल्यू, सम, काउंट, ये सब कैलकुलेट करना है आपको ऑन अ सिंगल क्लिक। तो ऐसा भी आप कर सकते हो। तो उसके लिए क्या करना है आपको कि तो दैट वी आर गोइंग टू कैलकुलेट हियर। तो हम क्या करते हैं यहाँ पे, मैं इसको मिटा देता हूँ, ठीक है। आई एम गोइंग टू इसको निकाल देते हैं, नो बॉर्डर, ठीक है। तो ये दिस इज द डेटा विच वी हैव, देयर आर नंबर ऑफ द एम्प्लॉयज एंड दे आर गेटिंग द सैलरीज इन बिटवीन दिस, ओके। दीज आर द रैंडम नंबर्स आई हैव गिवन, ओके। नाउ अभी आपके लैपटॉप में यू शुड हैव एंड द टूल, यू शुड, आपके लैपटॉप में ये डेटा एनालिसिस, ये पैक या फिर ये टूल एक्टिव होना चाहिए। If you do not have this data analysis tool, then you cannot calculate directly the descriptive statistics. This descriptive statistics, right? So therefore, you should activate the data analysis tool in your Excel sheet. तो उसके लिए क्या करना है आपको, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज आपको ये क्वेश्चन आता है कि मुझे कैलकुलेट करना है, आई जस्ट वांटेड टू प्रैक्टिस, ये सब करना है, लेकिन मेरे लैपटॉप में है ही नहीं, तो क्या करें। तो पहले आपको क्या करना है, इफ यू वांट टू एक्टिवेट दिस, ऑलरेडी मैंने एक्टिवेट किया है इसको। तो इफ यू वांटेड टू एक्टिवेट दैट, व्हाट यू नीड टू डू, यू नीड टू क्लिक ऑन द फाइल ऑप्शन, यू नीड टू क्लिक ऑन व्हाट, फाइल ऑप्शन में जाना है। फाइल में क्लिक करने के बाद यहाँ पे देखो एट द डाउन, यहाँ पे ऑप्शन है, यहाँ पे लिखा है ऑप्शन इज देयर, राइट। There's the option is there, and after clicking on option, then you have to click on add on, add-ins पे क्लिक करना है। add-ins पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे देखो मैनेज करके एक ऑप्शन है नीचे, there is the option is called मैनेज। यहाँ पे आपको सेलेक्ट करना है Microsoft Excel add-ins, and then after you need to click on go button, एंड यहाँ पे देखो मैंने डेटा एनालिस्ट को यहाँ पे क्लिक करके रखा है, राइट। मतलब पहले आपके लैपटॉप में ऐसा रहेगा, यहाँ पे कोई क्लिक नहीं रहेगा, राइट। तो आई नीड टू सेलेक्ट हियर एनालिसिस टूल पैक, एंड आफ्टर दैट आई नीड टू क्लिक ऑन ओके बटन, देन आई विल गेट दिस डेटा एनालिसिस टूल इन द डेटा टैब, ओके। So this was the data analysis tab you need to activate in your Excel sheet, and after activating that आपको क्या करना है, तो if I wanted to calculate
डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स ऑफ दिस सेट ऑफ डेटा। तो मुझे क्या करना है, डेटा में जाना है, यहाँ पे अलग अलग ऑप्शन है, देखो मेन्यू बार में डेटा में जाना है, देन आफ्टर आई नीड टू गो टू डेटा एनालिसिस, एंड आफ्टर दैट यहाँ पे ऑप्शन से देखो डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स। Descriptive statistics is the option that you need to select, and after that you need to click OK button. Then you will get this option, you will get descriptive statistics. फिर यहाँ पे इनपुट रेंज देना, तो इनपुट रेंज आपको क्या कौन सी देनी है, ये बेसिक सैलरी, द सैलरी ऑफ दिस 20 एम्प्लॉयज, तो इनका आपको डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक कैलकुलेट करना है। ओके, तो यहाँ पे क्या करना है आपको, you need to select the input range करना है। यहाँ पे देखो I'm going to select this from here to C23, right? And after that I need to click on labels in first row, and after that you need to click on output range। तो आउटपुट रेंज मुझे कहाँ पे देना है, तो इफ यहाँ पे एक ऑप्शन है, देखो यहाँ पे आउटपुट रेंज, इफ आई वांट टू गिव हियर दिस ऑन दिस सेल, राइट, सेल यहाँ पे दिया मैंने H5 को देना है, राइट, आउटपुट रेंज H5 को देना है, ये H5, एंड आफ्टर दैट ये आपको सेलेक्ट करना है, कर सकते हो, अदरवाइज जो आपको डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स कैलकुलेट करना है, so that you can easily calculate. And after that I'm going to click on OK button. क्या प्लीज चूज एटलीस्ट वन स्टैटिस्टिक्स ऑप्शन, तो यहाँ पे मुझे स्टैटिस्टिक ऑप्शन कुछ तो चूज करना होगा। ओके, तो आई जस्ट नीड टू सेलेक्ट हियर समरी स्टैटिस्टिक्स। ओके, समरी स्टैटिस्टिक्स, यहाँ पे आप कॉन्फिडेंस लेवल ऑफ मीन भी सेलेक्ट कर सकते हो। ओके, एंड आफ्टर दैट यू नीड टू क्लिक ऑन ओके। यहाँ पे मैंने आउटपुट रेंज ऑलरेडी दिया। ओके, देखो आई गॉट दिस डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स, राइट, मतलब ऑन अ सिंगल क्लिक आई एम गेटिंग दिस आउटपुट, राइट। तो मुझे मीन भी मिल गया, स्टैंडर्ड एरर शुड बी मिनिमम, दैट इज दिस मीन, मोड, मीडियन, ये कुर्टोसिस ने मैंने निकाला, ये स्क्यूनेस भी इज वन ऑफ द इम्पोर्टेंट statistical tools which you can use for the data analysis, range, minimum value, maximum values, ये काउंट दिए है, देखो काउंट मतलब यहाँ पे कितनी वैल्यूज है, 1 to 19 है, यहाँ पे कितने 20 लिखा है, मतलब यहाँ पे कुछ तो मिसिंग है क्या, देखो मैं अभी इसको चेक करता हूँ। काउंट यहाँ पे कितना आया है, 19 आया है, तो हमारे यहाँ पे कॉन्फिडेंस लेवल 95% है, इसने 19 यहाँ पे पकड़ा। ओके, ठीक है। सो दिस इन दिस वे यू कैन कैलकुलेट द, मतलब एरर मिनिमम है कितना है, द 5% इज देयर। So in this way you can calculate the descriptive statistics. Okay. So this is one of the important tool which can help you to analyze the data. Then next important thing is there, so that you need to understand, that is correlation. Correlation is one of the important tools generally used by the researcher or the research scholar to test the hypothesis. So correlation क्या है? It is nothing but it's showing the relation in between the variable. Relation in between the variable. So there are two kinds of variables are there. The one is a dependent variable and second is a independent variable. तो यहाँ पे क्या है कि whether there is a what kind of relation है, whether there is a positive relation है कि negative relation है, तो that generally we can understand with the help of correlation. तो correlation यहाँ पे क्या होता है कि generally the correlation can be calculated between the two variables or more than two variables भी हो सकते हैं, right? तो correlation generally lies in between the -1 to +1, -1 to +1. तो as you can see on the screen, यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या है,
-1 इफ द आपने जो भी कैलकुलेट किया है उसकी वैल्यू अगर -1 है तो इट इज नोन एज अ परफेक्ट negative correlation, right? Perfect negative correlation. And if your value lies in between -1 to, देखो यहाँ पे लिखा है सेकेंड, -1 to -0.75, then it is called as a high degree negative correlation, right? Then third क्या लिखा है, if it is ranges, the value is range in between -0.75 to -0.25, it is called as a moderate degree of correlation, negative correlation. And if it is there is a answer आपका 0 आता है तो it is there is a no correlation. And if there is a plus value is there, मतलब if your answer is more than 0 but less than 1, अगर 1 आंसर है तो it is perfect positive correlation. 0.75 to 1 है तो high degree of positive correlation, and this is the moderate degree of correlation. So in this way we generally just analyze whether there is a relation in between high degree of correlation or the low degree of correlation in between the variables or not. So that generally we calculate with the help of correlation. Now अभी आपने जो कैलकुलेट किया है, आपने जो अपने आपके बुक में पढ़ते हो वो कार्ल पियर्सन कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन, स्पेरमैन मेथड्स ऑफ कोरिलेशन, ये आप कैलकुलेट करते हो. लेकिन आपको इफ यू वांट टू कैलकुलेट द कोरिलेशन इन द एक्सेल शीट, तो दैट इजीली यू कैन कैलकुलेट. So for that what you need to do, just tell. क्या करना है, तो देयर इज वन data is there, as you can see on the screen, this is the data and this is the glucose. तो ये डेटा क्या इंडिकेट करता है कि जैसे जैसे एज बढ़ती जाती है, या एज का क्या रिलेशन है ग्लूकोज के साथ, जैसे जैसे आपकी एज बढ़ती है तो वैसे आपकी बॉडी में मतलब ये ग्लूकोज का पोर्शन इंक्रीज होता है या नहीं. एज योर एज इंक्रीजेस, whether the glucose is going to increase or not in the person's body. So this is the what kind of different kind of correlation if you want to calculate. तो इसके लिए आपको क्या करना है, सिंपली यहाँ पे आपको ये डेटा ऑलरेडी मैंने लिखा है, आपको क्या करना है यहाँ पे मुझे कोरिलेशन कैलकुलेट करना है. ओके, ओ correlation, then I need to here I'm going to give a command like is equal to, यहाँ पे आपको लिखना है कॉरल, CORREL, कॉरल देना है. देन आफ्टर यू नीड टू सेलेक्ट द डेटा. डेटा क्या दिया है, array 1 एंड array 2, राइट. तो मतलब यहाँ पे क्या है, आपको दोनों सेलेक्ट करना है, डिपेंडेंट वेरिएबल एंड इंडिपेंडेंट वेरिएबल दोनों सेलेक्ट करना है. ओके, so this I'm going to select here. Okay, and I'm going to close the bracket and press enter. क्या लिखा, you have entered few arguments for this function. Okay, ठीक है. हमें क्या करना है, एक मिस्टेक किया वो भी देखना जरूरी है. क्या लिखा है, हमें क्या करना था एक्चुअली, इसको सेलेक्ट क्या करना है, इज इक्वल टू कॉरल, CORREL, इसको सेलेक्ट करना है. देन आई नीड टू सेलेक्ट व्हाट, array 1, ये सेलेक्ट करना है पहले मुझे. ये देने के बाद मुझे कॉमा देना था, राइट. तो मैंने एक्चुअली दोनों सेलेक्ट किया था, राइट. यहाँ पे आई एम गोइंग टू गिव अ कॉमा. देन देयर इज आई नीड टू सेलेक्ट द सेकंड, दिस इज द डिपेंडेंट वेरिएबल, दिस इज द इंडिपेंडेंट वेरिएबल. Then I'm going to close the bracket, and after that I'm going to press the enter button. Okay, now the answer is what, this is what the answer is plus, it is more than what, 50, right. So this is what the positive correlation. तो positive correlation ये मतलब ये कौन सा है, if the answer is lies in between what,
0.25 to 75, तो ये मॉडरेट डिग्री ऑफ पॉजिटिव कोरिलेशन है, राइट. So in this way we can calculate this one. Then I hope ये आपको समझा होगा. इसमें कुछ क्वेश्चन तो बोलो कोरिलेशन में. फॉर्मूला No, यूज sir, करना it's है. clear. इट्स क्लियर, सिंपल है एकदम. तो यहाँ पे ओनली इज इक्वल टू लगा के लिख के कॉरल लिखना है. देन सेलेक्ट करना है डिपेंडेंट वेरिएबल एंड इंडिपेंडेंट वेरिएबल, ब्रैकेट क्लोज, एंड देन यू टू कैलकुलेट. Then there is another important statistical tool used by the uh, researcher generally to test the hypothesis. Hypothesis टेस्ट करने के लिए जनरली ये मोस्टली यूज किया जाता है. तो रिग्रेशन और कोरिलेशन में क्या फर्क है, क्या फर्क है, ये हमें पहले समझना बहुत जरूरी है. बिकॉज कोरिलेशन में क्या होता है, जनरली वी मेजर वेदर देयर इज अ रिलेशन इन बिटवीन टू वेरिएबल्स और मोर देन टू वेरिएबल्स में है कि नहीं, खाली यही बताता है कोरिलेशन. ठीक है. कभी कभी क्या होता है कि दोनों वेरिएबल में कुछ मतलब कुछ संबंध भी नहीं होता, लेकिन फिर भी हम क्या कर सकते हैं, कोरिलेशन से बता सकते हैं. जैसे कि आपका जैसे इफ द प्राइस ऑफ कॉफी इंक्रीजेस, देन डिमांड फॉर टी शर्ट विल आल्सो इंक्रीज. मतलब यहाँ पे एक डेटा है प्राइस ऑफ कॉफी एंड ऑन द अदर डिमांड फॉर टी शर्ट. एक्चुअली दोनों में कुछ संबंध है नहीं, लेकिन आप अगर यहाँ पे डेटा दिया है, डिपेंडेंट वेरिएबल इंडिपेंडेंट वेरिएबल दिया है आपको, तो ये आपको कोरिलेशन कैलकुलेट करके दे देगा क्या रिलेशन है. मतलब यहाँ पे एक्चुअली कोरिलेशन आपको कॉज एंड इफेक्ट नहीं बताता है, राइट. रियली डिमांड फॉर टी शर्ट का प्राइस ऑफ कॉफी के साथ रिलेशन है कि नहीं, क्या कॉज एंड इफेक्ट है, तो ये कोरिलेशन नहीं बताता है. जनरली इट इज कैलकुलेटेड, इट इज टेस्टेड इनटू द रिग्रेशन. तो देयर आर वेरियस टाइप्स ऑफ रिग्रेशन इज देयर. तो यहाँ पे डिपेंडेंट वेरिएबल है, डिपेंडेंट वेरिएबल हमने लिया है कौन सा, वेट लिया है. एंड सेकंड फर्स्ट इज व्हाट, हाइट. तो जैसे जैसे आपकी हाइट बढ़ती है आपका वेट क्या होता है, इंक्रीज होता है या फिर डिक्रीज होता है. तो ये दिस इज द सेट ऑफ डेटा विच आई हैव. एंड तो मुझे क्या करना है, इसमें से कैलकुलेट करना है कि वेदर दोनों के बीच में रिलेशन है या नहीं, या फिर रियली इज देयर द राइजिंग द वेव्स इज द कॉज ऑफ द हाइट और नॉट. तो ये अगर मुझे फाइंड आउट करना है तो आई नीड टू टेस्ट द हाइपोथेसिस. ओके. सो जनरली रिग्रेशन एनालिसिस के अलग अलग टाइप्स है, मल्टीपल रिग्रेशन, लीनियर रिग्रेशन इज देयर. तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, ओनली विल टॉक अबाउट दिस लीनियर रिग्रेशन. लीनियर रिग्रेशन में क्या होता है कि देयर इज अ परफेक्ट पॉजिटिव correlation in between the two data set. Like this is on the screen, you can see this is the OX axis पे हमने क्या दिया है, this is the dependent variable and independent variable. तो इससे मैं कैलकुलेट किया है कि whether there is a ये क्या इंडिकेट करता है, दिस इज अ परफेक्ट, दिस इज अ लीनियर, मतलब the percentage change in one variable is positively affect on the another variable, right. तो यहाँ पर क्या है, लीनियर कोरिलेशन इज द रेशियो ऑफ चेंज बिटवीन टू वेरिएबल्स एंड दे मूव इन द सेम डायरेक्शन और टू द ऑपोजिट डायरेक्शन. ये नेगेटिव भी हो सकता है, राइट, या फिर ये पॉजिटिव भी हो सकता है. दिस इज व्हाट द पॉजिटिव लीनियर कोरिलेशन है, राइट. एंड ये कौन सा है, हमारा नॉन लीनियर कोरिलेशन है, राइट. मतलब यहाँ पे एक्चुअली क्लियर नहीं हो रहा है, अप टू सर्टेन पॉइंट पॉजिटिव कोरिलेशन है एंड आफ्टर दैट देयर इज अ नेगेटिव कोरिलेशन इज देयर. तो यहाँ पे देखो हमें क्या करना है कि इन द एक्सेल वी नीड टू कैलकुलेट द रिग्रेशन. तो जनरली रिग्रेशन कैसे कैलकुलेट करते हैं मैं आपको इन शॉर्ट बताता हूँ. क्या करना है, दिस इज द इंडिपेंडेंट वेरिएबल एंड दिस इज द डिपेंडेंट वेरिएबल. तो इफ आई वांटेड टू कैलकुलेट दिस, तो मुझे क्या करना होगा, ऑलरेडी मैंने यहाँ पे कैलकुलेट किया है.
So what I need to do, I need to go into the this is my actually data set, okay, and I need to go into the data tab. After that, I need to select, you have to click on data analysis, and after that I need to select what, यहाँ पे regression लिखा है, right? Regression मुझे select करना है, and after that I need to click on OK button. Okay, OK button पे click करना है, and yeah, and after that यहाँ पे दिया है, देखो input देना है, we need to give the input to this कमांड देना है, तो क्या करना है, दिस इज हमारा y मतलब हमारा क्या है, दिस इज द डिपेंडेंट वेरिएबल, है ना, एंड x हमारा ये इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, तो हमारा y इज डिपेंडेंट ऑन द x, तो यहाँ पे क्या करना है, हमें y पे लेना है, दिस इज द डिपेंडेंट वेरिएबल सेलेक्ट करना है, राइट, एंड x पे हमें क्या करना है, ये इंडिपेंडेंट वेरिएबल सेलेक्ट करना है, ओके, एंड आफ्टर दैट यू नीड टू गिव व्हाट, द लेबल यहाँ पे सेलेक्ट करना है, एंड आफ्टर दैट ये आपके ऊपर है, यहाँ पे क्या करना है, ये आउटपुट रेंज देना है, आउटपुट रेंज कहाँ पे देना है, व्हाट आई विल डू हियर, नीचे नहीं जा रहा है, ठीक है, तो फिलहाल हम क्या करते हैं, इसको न्यू वर्कशीट पे ले लेते हैं, ठीक है, कहाँ गया, हाँ देखो यहाँ हमने क्या किया, न्यू वर्कशीट वाई पे क्लिक किया, या फिर न्यू वर्क भी कर सकते हो, एक्चुअली यहाँ पे ऑलरेडी ये फुल है, तो यहाँ पे मैंने न्यू वर्कशीट बाय किया है, एंड आफ्टर दैट आई कैन सेलेक्ट द रेसिडुअल्स, ये मैं ले लेता हूँ, स्टैंडर्डाइज ले सकते हो आप, ये नॉर्मल प्रोबेबिलिटी भी इट्स अपॉन यू, इफ वांट टू कैलकुलेट, सो दैट आल्सो यू कैन डू, तो खाली इसको सेलेक्ट करना है, एंड आफ्टर दैट यू नीड टू जस्ट क्लिक ऑन, यहाँ पे भी इसको कॉन्फिडेंस लेवल 95 कर देता हूँ मैं, एंड आफ्टर दैट आई नीड टू क्लिक ऑन ओके बटन, तो फिर आई एम गोइंग टू क्लिक द ओके बटन, अभी देखो यहाँ पे न्यू शीट पे मैंने ऑलरेडी कैलकुलेट करके यहाँ पे आउटपुट आया है मेरा, राइट, मतलब ये डेटा है मेरा, कौन सा, ये डेटा है, और इस डेटा को मैंने यहाँ पे कैलकुलेट किया है, राइट, दिस इज द न्यू शीट which I got, okay, मतलब on the basis of this data I have calculated this regression, तो regression यहाँ पे वैल्यू क्या है, देखो द मल्टीपल आर कितना है, 0.92, देखो सेम यहाँ पे 0.92 आया है, तो ये मल्टीपल आर इंडिकेट्स whether there is a it refers the equation is important for this data, and also known as a correlation coefficient. It means there's an increase in the height, definitely there's an increase in the weight of the people by 0.92, ओके, मतलब देयर इज अ हाई प्रोबेबिलिटी, मतलब जनरली ये इंडिकेट क्या करता है, ये हमारा जो डेटा है, इस डेटा सेट इज परफेक्ट, द हाई आर स्क्वायर, ये आर स्क्वायर कितना है, इट्स अबाउट 0.86 है, विच इंडिकेट्स there is a high cause and effect relation in between these two variables, okay, so this is what the thing, and the another important, ये आपको degree of freedom ये पता है, degree of freedom indicates that it is associated with the source of variation, हमारा standard error कम से कम होना चाहिए, and this is the p value, यहाँ पे आई है, देखो p value हमारी should be less than 0.05, if it is less than 0.05 then we can say there is a perfect, हमारा मॉडल जो है एकदम सही है, परफेक्ट है, yes there is a cause and effect in between these variables, तो ये p वैल्यू 0.05 से कम है, तो इट मीन्स अवर मॉडल इज परफेक्ट, हमारा जो हाइपोथेसिस है विच इज एक्सेप्टेड, तो यहाँ पे देयर आर टू काइंड्स ऑफ हाइपोथेसिस आर देयर, द वन इज नल हाइपोथेसिस एंड सेकंड इज अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस, तो इफ योर आंसर इज अगर आपकी p की वैल्यू इफ इट इज लेस देन 0.05 आती है, एंड इफ द
R square is more than, मतलब more than 60%, और actually it is very close to 1, so therefore ये high level पे, right? So if it means that your model is accepted, yes, uh, there is a height, on the basis of this numbers we can say, yes, there is a height is the cause for the rising the weight of the people. यहाँ पे लिखा है देखो, हाइट इज नॉट द कॉज ऑफ द वेट, सो दिस इज हमारा ये कौन सा हाइपोथेसिस है, ये हमारा ये अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस है, ये रिजेक्ट हुआ है, एंड ये हमारा जो नल हाइपोथेसिस है ये क्या है, ये एक्सेप्ट हुआ है, राइट? नल हाइपोथेसिस हमारा एक्सेप्ट हुआ है, सो इन दिस वे वी कैन टेस्ट द हाइपोथेसिस. Okay, students, there are many things just I wanted to tell you. Already have prepared yet, but because of lack of time, because other I think there's one more session is there of the Dipali ma'am, so she's going to type. So this is for what from my side. So if you have any questions, so you're welcome. You can ask the question. Yeah. Hello students, if you have any questions, you can write in the chat box. Thank you, sir, for doing so much for us. It was really a great session with you. I request everyone to switch on your cameras for a beautiful group picture. Thank you.